اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ یستفتونک قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ ان امرؤ ہلک لیس لہ ولد ولہ اخت فلہا نصف ما ترک وہو یرثها ان لم یکن لہا ولد فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ میں نے آپ کے سامنے آیت نمبر 176 سورہ نساء کی تلاوت کی۔ یہاں پر ذکر ہو رہا ہے ایک شخص اگر کلالہ فوت ہو جائے تو اس کی ملکیت جو اس نے چھوڑا، اس کا جو ترکہ ہے وہ اس کے وارثوں میں کس طریقے سے بٹے گا، کس قانون کے تحت بٹے گا۔ اگرچہ کلالہ کے بہن بھائیوں کے متعلق ایک حکم اسی سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 12 میں ہم پڑھ چکے ہیں، لیکن وہاں پر اخیافی بھائی بہنوں کا ذکر تھا، وہ میں آپ لوگوں کو بتا چکا ہوں۔ یہاں پر جو بھائی بہنوں کا ذکر ہے وہ عینی اور علاتی بھائی بہنوں کا ذکر ہے کہ ایک شخص ہے کلالہ اور وہ فوت ہو جاتا ہے۔ تو پہلے کلالہ کی تعریف سمجھ لیجئے کہ ایک ایسا شخص کہ جس وقت وہ فوت ہو رہا ہے نہ اس کے والدین ہیں، نہ اس کے دادا حیات ہیں، نہ اس کی اولاد ہے اور نہ کوئی پوتا ہے، یعنی یہ کہیے نہ اصول میں کوئی ہے نہ فروع میں کوئی ہے۔ جمہور مفسرین محدثین نے یہی رائے اختیار کی ہے، تو یہ شخص کلالہ کہلائے گا۔ اب اس کے بھائی بہن ہیں یا بہنیں ہیں عینی اور علاتی۔ عینی کا مطلب سمجھ لیجئے وہ بھائی بہن جو ماں باپ دونوں میں مشترک ہیں، یعنی ماں اور باپ دونوں کے ایک ہی ہیں، یہ عینی بھائی بہن کہلاتے ہیں۔ علاتی بھائی بہن وہ کہلاتے ہیں جو باپ شریک تو ہیں لیکن ماں شریک نہیں ہے، یعنی ایک شخص ہے کہ اس نے ایک سے زائد شادیاں کی ہیں اور ایک سے زائد بیویوں سے اس کے بچے ہیں، تو یہ جو آپس میں بھائی بہن ہوں گے اگرچہ ان کی مائیں الگ ہے لیکن باپ چونکہ ان کا ایک ہی ہے، یہ کہلاتے ہیں علاتی بھائی بہن۔ ان کے لیے حکم آ رہا ہے۔ رسول اللہ سے بعض صحابہ کرام نے یہ دریافت کیا، حضور کلالہ کے متعلق ذرا اور تھوڑا ڈیٹیل کر دیں، چونکہ یہ حکم آیت نمبر 12 میں بھی آ چکا تھا۔ اس کا جواب دیا جا رہا ہے یستفتونک، یہ آپ سے فتویٰ معلوم کرتے ہیں، فتویٰ دریافت کرتے ہیں، یہ آپ سے حکم معلوم کرتے ہیں۔ قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ، قل اللہ فرما دیجئے کہ اللہ یفتیکم کہ وہ فتویٰ دیتا ہے تمہیں فی الکلالہ، کلالہ کے بارے میں۔ کیا فتویٰ ہے؟ فرمایا ان امرؤ، اگر ایک مرد ہلاکا فوت ہو جائے، یعنی ایک مرد ہے مر جائے، لیس لہ نہیں ہے اس کے ولدن کوئی اولاد، ظاہر کلالہ ہے کوئی اولاد نہیں ہے، ولہ اور اس کے ہے اختن ایک بہن، فلہا نصف تو اس کے لیے آدھا، ما ترک کہ جو چھوڑا، یعنی جو ترکہ ہے، ایک کلالہ مرد ہے وہ فوت ہو گیا اور اس کے ایک بہن ہے، پھر سمجھ لیجئے کہ یہ بہن یا تو عینی ہے یا علاتی ہے، اس کے لیے آدھا جو چھوڑا، یعنی جو اس کے بھائی نے چھوڑا ہے اس ترکے کا آدھا اس بہن کو ملے گا۔ فرمایا وَهُوَ يَرِثُهَا اور وہ اس کا وارث ہوگا، یعنی یہ کہیے کہ یہ شخص خود حیات ہے اور بہن فوت ہو گئی، بہن بھی کلالہ ہے، وَهُوَ يَرِثُهَا اور وہ اس کا یعنی وہ مرد اپنی بہن کا وارث ہوگا، علم اگر نہیں ہے، یکن لہا ولد اس کے کوئی اولاد، یعنی اگر اس کی بہن کے کوئی اولاد نہیں ہے، یعنی بہن بھی اگر کلالہ ہے اور اس کا ایک بھائی ہے تو یہ بھائی اس کے ترکے کا پورا ہی مالک ہو جائے گا۔ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ پس اگر وہ ہوں دو، یعنی دو بہنیں ہوں،
अगर उस कलाला शख्स की 2 बहनें हों फलाहुमा सुलुसानी, तो उन दोनों के लिए 2/3 मिम्मा तरक, उससे के जो छोड़ा। ये बताया जा रहा है कि अगर ये शख्स जो फौत हुआ है, अगर इसके 2 बहनें हैं ऐनी या अल्लाती, तो उन 2 बहनों के लिए 2/3 तरका होगा जो छोड़ा। व इन कानू, और अगर वो हों इख्वतन, भाई बहन, यानी कुछ भाई कुछ बहन हों, रिजालम व निसाअन, मर्द और औरतें, यानी वो अगर उसके भाई बहन हैं, कुछ मर्द हैं कुछ औरतें हैं, फलिज़्ज़करी, तो मर्द के लिए मिस्लु, मानिंद हज्जिल उनसयैन, हिस्सा 2 औरतों के, यानी फिर उसी तरह बंटवारा होगा कि एक मर्द के लिए 2 औरतों के बराबर हिस्सा होगा। समझ गए बात? ये बिल्कुल वही कानून है जो कोई शख्स फौत हो जाए तो उसकी औलाद के लिए जो कानून होता है कि अगर एक ही बेटा है तो जाहिर बेटा पूरा पूरा मालिक हो जाएगा, और अगर एक बेटी है तो बेटी आधे की मालिक होगी, अगर बेटियां 2 या 2 से जायद हों तो फिर वो 2/3 की मालिक हो जाएंगी, और अगर कुछ बेटे कुछ बेटियां हैं तो क्या वहां हमने पढ़ा था लिज़्ज़करी मिस्लु हज्जिल उनसयैन, यहीं पर बात खत्म की फलिज़्ज़करी मिस्लु हज्जिल उनसयैन, तो एक मर्द के लिए हिस्सा 2 औरतों के बराबर। अब समझ लीजिए इस बात को थोड़ा सा कि अगर एक शख्स कलाला फौत हो रहा है और इसके सिर्फ एक बहन है, तो इसकी एक बहन इसके कुल तरके से आधे की मालिक होगी। अगर इसकी बहन फौत हो जाए और ये शख्स खुद हयात है तो ये अपनी बहन का पूरे तरके का मालिक हो जाएगा। अगर एक बहन ना हो करके इस कलाला शख्स की 2 बहनें हैं या 2 से जायद हैं तो वो 2/3 में मालिक हो जाएंगी, और अगर कुछ इस तरह भाई बहन हैं कि कुछ भाई हैं कुछ बहनें हैं तो इस तरह बांटा जाएगा कुल तरका कि एक मर्द के यानी एक भाई के हिस्से में 2 बहनों के बराबर तरका आएगा। फरमाया युबय्यिनुल्लाहु लकुम, खोल कर बयान करता है अल्लाह तुम्हारे लिए, अन तज़िल्लू, ताकि भटक ना जाओ। फरमाया तुम्हें ये इसलिए बताया जा रहा है, इसलिए बयान किया जा रहा है, वाज़े किया जा रहा है ताकि तुम भटक ना जाओ, यानी ला इल्मी की वजह से तुम कहीं धोखा ना खा जाओ। वल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीम, और अल्लाह हर शय का इल्म रखने वाला है, कुल का कुल इल्म अल्लाह ही के पास है। तो अब आप जरा इसको समझिए, ये तो मैंने आपको कुल कानून विरासत बता दिया। ये जहां मैंने कहा बात शुरू हुई थी जिस पर हम आयत नंबर 11 पढ़ रहे थे, फरमाया था लिज़्ज़करी मिस्लु हज्जिल उनसयैन, बात खत्म हुई आयत नंबर 176 में फलिज़्ज़करी मिस्लु हज्जिल उनसयैन। ये जो औलाद में या किसी कलाला शख्स के ऐनी या अल्लाती भाई बहनों में जो इस तरह से तकसीम किया जाता है कि एक मर्द के पास 2 औरतों के बराबर हिस्सा आए, इसका क्या तरीका है? तो आप समझ लीजिए कि इनमें जो बांटने वाला जो कुल विरासत इनकी बटेगी भाई बहनों में या एक शख्स के फौत हो जाने के बाद उसके बेटों बेटियों में अगर ये बट रही है कुल विरासत तो इस तरह बांटी जाएगी। देखिए फर्ज कीजिए एक शख्स है कि उसके 3 बेटे हैं और 2 बेटियां हैं, ये फौत हो गया, या एक कलाला शख्स है कि उसके 3 भाई हैं और 2 बहनें हैं, बात वही है ऐनी और अल्लाती। कैसे बांटे कि एक मर्द के पास 2 औरतों के बराबर हिस्सा आए? तो मैंने आपसे यह कहा कि 3 इसके बेटे हैं एक शख्स के, 3 का 2 गुना कर दीजिए, 3 दूनी 6, 2 बेटियां हैं, 6 में 2 जोड़ दीजिए, बेटियों की तादाद 6 और 2 8, कुल मिल्कियत जो औलाद में बांटी जानी है उसके 8 हिस्से कर लीजिए, एक एक हिस्सा एक एक बहन को चला जाएगा, 2 हिस्से एक एक भाई को चले जाएंगे। इसी तरह अगर कोई कलाला शख्स है उसके बहन भाइयों में बांटा जाना है, 3 उसके अखियाफी, 3 उसके ऐनी या अल्लाती भाई हैं और 2 बहनें हैं, तो 3 का 2 गुना करिए, 3 दूनी 6, जितने भाई हैं उनकी तादाद को डबल कर दीजिए और इसमें बहनों की तादाद जोड़ दीजिए, 6 और 2 8, तो कुल तरका जो इनमें बांटा जाना है बहन भाइयों में एक कलाला शख्स के, तो इनके लिए क्या करेंगे, 8 हिस्से किए आपने, एक एक हिस्सा एक एक बहन को दे दिया, 2 हिस्से एक एक भाई को दे दिए, इस तरह एक भाई के हिस्से में एक बहन से डबल हिस्सा आएगा। यह तरीका है
इस तरह बांटने का कि भाई के पास बहन से डबल हो जाए, या एक शख्स के फौत हो जाने के बाद उसके बेटों और बेटियों में इस तरह बटे कि एक बेटे के पास 2 बेटियों के बराबर आ जाए। ये भी आप समझ लीजिए। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि फर्ज कीजिए एक शख्स है, उसने 8 लाख रुपए की कुल विरासत छोड़ी, यानी जो कुछ भी उसने छोड़ा आपने कीमत लगाकर देखी 8 लाख रुपए आए। अब इसके फौत होते हुए इसकी बीवी हयात है, इसके कुछ बेटे बेटियां हैं और इसकी वालदा भी हयात हैं। तो अब चूंकि आपको पता है कि बीवी का हिस्सा 8वां है, अगर ये शख्स जो फौत हुआ है इसके औलाद है, तो 8वें हिस्से का मतलब ये हो गया कि 1 लाख का 8वां हिस्सा 1 लाख तो इसकी बीवी का हो जाएगा। अब आपको वालिदा को देना है, वालिदा को छठा हिस्सा जाएगा। तो छठा हिस्सा अब ये ना समझिए कि 1 लाख चूंकि वालिदा को दे चुके हैं तो बचे 7 लाख, तो 7 लाख का छठा नहीं देना है, बल्कि कुल 8 लाख का ही छठा देना है। यानी जितना उसने छोड़ा उसका छठा हिस्सा उसकी वालिदा का है। उसने 7 लाख नहीं छोड़े, 8 लाख की कुल मिल्कियत छोड़ी उसने। जब 8 लाख की मिल्कियत छोड़ी, आपने 8वां हिस्सा उसकी बीवी को दे दिया। अब जो 7 लाख बचे, इस 7 लाख में से छठा हिस्सा वालिदा का नहीं होगा, बल्कि टोटल जो उसने छोड़ा था कुल मिल्कियत, उसका 8 हिस्सा जो है उसकी वालिदा का होगा। अब बाकी जो बचेगा, ये जो औलाद में बटना है, ये इसी तरह बटेगा, लिज़्ज़करी मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, कि एक बेटे को हिस्सा 2 बेटियों के बराबर। अच्छा, ये भी आप समझ लीजिए कि जब भी कभी औरत और मर्द के बीच में तकसीम होगी तो तकसीम इस तरीके से होगी कि मर्द को डबल हिस्सा मिलेगा औरत के मुकाबले पर, या कहिए कि एक मर्द का हिस्सा 2 औरतों के बराबर होगा। लेकिन अगर ये तकसीम एक कलाला शख्स के अखियाफी भाई बहनों के दरमियान हो रही है, तो उसमें फिर ये याद रखिए, जेंडर की तफरीक नहीं होगी, बहन हो या भाई हो, बराबर बराबर हिस्सा दिया जाएगा। ये मैं आपको इससे पहले बता चुका हूं। इससे पहले जो मेरी 2 और वीडियोस हैं वो आपको यही मिल जाएंगी, आप देखिएगा। तो टोटल आपका ये कानून विरासत हो गया। इस कानून विरासत को आपको समझना है और फिर इस पर अमल भी करना है।